ये फ्रांसिस नगानू के इंटरव्यू का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल पे जाइए और पहला पार्ट देख के आइए। और वैसे अगर नहीं भी देखेंगे तो इसके बाद भी देखेंगे तो समझ में आ जाता है। ठीक है, मैंने उसमें बताया है कि आखिर इस इंटरव्यू को कवर करना क्यों ज़रूरी था, और ये एज अ पर्सन फ्रांसिस नगानू के कैरेक्टर में ग्रोथ बताता है। ठीक है, तो चलिए पिछले वीडियो से आगे बढ़ता है। Like, listen, if I even have that irreversible damage that you guys are talking about, when I win this fight, I will be okay with it. बोला कि रिस्क तो हर आदमी को लेनी पड़ती है, अगर वो इरिवर्सिबल डैमेज होता तो भी आई वुड हैव बीन ओके विद इट। यानी कि मेरे को उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़िंदगी में हर आदमी को हर जगह पर रिस्क तो लेनी पड़ती है। That's how going into this fight, it was in my mind, like that was the situation. So just to be clear, to repeat, on the Tuesday before the fight, 6 days ago, you go to a doctor in LA and he says, my medical opinion is you should not take this fight in 6 days. Yes, 5 days. और एरिल हवानी बोल रहा है, उसी की बात को रिपीट कर रहा है जो फ्रांसिस ने अभी कही। Yeah. Wow. 4 days. Yeah, 4 days. Yeah, 4 days. My man sucks. And you were like, yeah, okay, I'm still gonna do it. Yeah. Wow. I was ready. I mean, in my mind, I was ready. My body wasn't really good. I was ready. I was in shape. I trust my conditioning. बोला कि मैं तैयार था। ये बात अलग है कि मेरी बॉडी जो है उस कंडीशन में नहीं थी, बट मेरी कंडीशनिंग बेहतर थी एंड आई वाज रेडी फॉर द फाइट। And by the way, I have to shout out to Kyle Larimé at the USCPI. He's been working on my conditioning in the past 2 years, and if it's not 3 years, and I knew that I'm gonna get into 5 rounds if I have to get there. Regardless, I know that I can. So I was confident about that. The work that has been put in to get my conditioning and all the stuff, and I knew that. वो अपने कोच को थैंक्स कह रहा है जिसने उसकी कंडीशनिंग में ध्यान दिया। उसे पता था कि अगर वो फाइट 5 राउंड के लिए भी जाती है तो उसकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी है कि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। They are counting me out on that one. So I'm like, I get. और वो बोल रहा है कि सभी लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि दे आर काउंटिंग मी आउट ऑन दैट वन, यानी कि उसी बात की उम्मीद कर रहे थे कि अगर फ्रांसिस को जीतना है तो उसको जल्दी जल्दी जीतना होगा, जैसे जैसे लेट होगा तो सीरियल के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और मेरे जैसे चूतिए भी आपको यही बता रहे थे। True, I had a lot of trick in my pocket, so and I have all this based on my little experience. I knew it won't be easy, but he will be possible. एक बार फिर से फ्रांसिस वही बात बोलता है कि आई न्यू इट वॉन्ट बी ईजी बट इट विल बी पॉसिबल। यानी कि उसे पता था कि ये बात आसान नहीं रहेगी बट पॉसिबल है। और दुनिया में ऐसी कौन सी बात होती है जो आप चाहना चाहते हैं और वो आसान होती है। What's going on in the first 2 rounds? In my opinion, you won 3 rounds to 2. You won 3, 4, and 5. No question about it. First 2 rounds, it was looking a little bit dicey. वो उससे पूछ रहा है कि पहले के 2 राउंड में क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से फ्रांसिस राउंड 3, 4 और 5 जीता है, और राउंड 1 और 2 में फ्रांसिस का दिमाग में क्या चल रहा था। What did you think? What's going on in your mind in those first 2 rounds? The first 2 rounds, I was thinking about my knee all the time, moving forward, want to switch guard, want to do this. So I'm like, oh, the canvas is slippery, or this, couldn't really move, and he was moving a lot, and I couldn't really move laterally without thinking about my knee. फ्रांसिस बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और सिरिल काफ़ी मूवमेंट कर रहा था। कारण सिंपल है कि मैं पूरे समय अपनी नी के बारे में ही सोच रहा था। But the part of the strategy as well, and that was what Usman was there for. He was like, just put this guy in pressure. We know that I didn't have all the ability to stand there and knock him out. So put him in pressure. We know that this fight can go to the 5th round. But if he go to the 5th, if I put him in pressure in the 2 rounds, obviously I'm definitely gonna take some damage, basically on my front leg. But I'm gonna get him to the point that he's tired as well and stop moving a lot. बोला कि हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि उस पर इतना प्रेशर डाला जाए कि वो तीसरे राउंड तक इतना थक जाए कि वो इतनी मूवमेंट ना कर पाए। कारण बहुत सिंपल है कि फ्रांसिस घुटने में चोट के कारण उतनी मूवमेंट नहीं कर सकता था, तो अगर सामने वाला भी उतना ही थक जाएगा
तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। और ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए वो कमारू उस्मान का नाम लेता है, कमरुद्दीन उस्मान का। stop doing all those stuff. So by the second round, I'm like, man, I'm losing this fight. And then came back to the third round, handled it pretty good. And at the end of the third round, बोला कि सेकंड राउंड तक मुझे लग रहा था कि मैं फाइट हार रहा हूँ, और सच बात यही थी। बट तीसरा राउंड अच्छा गया, और तीसरे राउंड के बाद जो मैंने देखा, और ध्यान से ये जो डायलॉग फ्रांसिस बोलने वाला है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस इंटरव्यू। ओके, लिसन टू इट। पता नहीं यार आवाज को क्या हो गया। ओके Wait a second. We lost your audio, Francis. Can you hear me, ओके, उनकी भी आवाज़ उनको भी नहीं आ रही, आने की मतलब अपना कोई गलती नहीं है। Francis? All of a sudden your audio went out, and we don't hear you anymore. I don't know. Maybe it's the headphones. I see you perfect, but the audio just went out in your headphones. I don't know if it was the. Oh, you back? I hear you now. I think. Can you say something? can you hear me? Yeah, now I can hear you. The audio went out for just a quick second there. But I can hear you. You cannot hear me? No? You lost me. You hear me? Hello, hello? You hear me? Good. All right. I I don't can know. hear you now. That was weird. I don't know what happened. So we lost you there for just a second. You said third round is when I think you started to gain that confidence, when you started to feel like you can turn this around. No, by the end of 10 round, I look at him. I saw me when I first stepped the first time. बोला कि तीसरे राउंड के एंड में जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे फ्रांसिस नगानू नज़र आया, जो स्टीपे की साथ फाइट में था। यानी कि फ्रांसिस को ये लग गया था कि ये आदमी ही इज़ रेडी टू लूज। I was like, this guy is done. Yeah. Wow. And he wasn't even able to listen to his coach. I was listening to his corner talk to him, and he wasn't reacting. I'm like, he's done. Like, this is exactly me when I first did it the first time. That's the moment that I knew that I won the fight. What a at the end visual. of the third round. That is incredible. That's when you started, because you felt like you broke him with the takedowns? Oh yes, he was broken. बोला कि क्या डिड यू, मतलब क्या तुमने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी टेक डाउन के साथ? तो बोला हाँ। I could have tell. Like, I look him in his eye, I'm like, this is a done deal. Wow. How was your cardio at that point? उस समय तक तुम्हारे कार्डियो की क्या स्थिति थी? Oh, I was good. I mean, I was definitely tired, but I knew like I was able to control my mind and to feel everything. But I knew like he wasn't able to do that anymore. He wasn't listening even. बोला कि मैं थोड़ा बहुत थका हुआ था, बट मेरा दिमाग जो है पूरी तरह कंट्रोल में था, और जहाँ तक सिरिल की बात है वो अपने कॉर्नर की बात तक Wow. And you can सुनना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। obviously hear what they're saying, right? I mean, you understand what they're saying. Yeah. And what are you thinking when he goes for that leg lock in the fourth round? What's going through your mind? Oh, that was pretty. वो लेग लॉक की बात कर रहा है हीरल हवानी, उसको बहुत सारे एनालिसिस का कहना है कि वो लेग लॉक के लिए जाके फिफ्थ राउंड में सीरियल ने बहुत टाइम वेस्ट किया। अगर वो वहाँ नहीं जाता और अगर टॉप पोजीशन से प्रेशर डालता तो फिर वो फाइट जीत सकता था। देखते हैं फ्रांसिस का क्या कहना है इस बारे में। Yeah, that was pretty good for me. he was on my good leg, and I know that. And I was also tired. वो बोल रहा है कि वो ये बात मेरे लिए अच्छी थी क्योंकि वो मेरे अच्छे लेग में था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फ्रांसिस नगानू आया तो आपने देखा होगा कि दोनों घुटनों पे उसके ब्रेसेस लगे हुए थे, राइट? दोनों घुटनों पे उसके गार्ड लगे हुए थे। अब अगर एक घुटने पे लगा होता गार्ड तो सामने वाले को पता होता कि एक घुटने पे चोट लगी है। दोनों में लगाने का सिर्फ मतलब ये था कि सामने वाले को थोड़ा बहुत तो गैस करना पड़े कि किस घुटने में चोट लगी है। इसीलिए उसने फ्रांसिस नगानू का वाला घुटना पकड़ा जिसमें उसको चोट नहीं लगी थी। So I was kind of like trying to like use the position, win on the time, and when he get that leg lock, I'm like, because he didn't have it, I was just making sure that he doesn't lock my hips, and as soon as my hips, as long as my hips is not locked, he couldn't lock my knee, he couldn't get a knee lock or something. So he was squeezing. I'm like, get good, keep going, this is how you lose energy. I was very like. वो बोल रहा था कि मैं चाहता था कि वो यही करते रहे क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा करके वो अपनी सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। Relax it because it's gonna get him
finally lose it, you're like, damn, fuck, what the hell is this? And that was exactly the same thing. I was very happy at अगर आप में से किसी का मन हो रहा है दूसरा वीडियो देखने का तो बिल्कुल देखिए, बस जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए। that moment. Like, So then it's 2-2 going into the fifth, and I posted this and I spoke to Eric, your coach, about it. I love what he said. I believe in you, MFer. I believe in you. We've been through so much. Like, it was just such a great moment, and you freaking dug down deep and did it. Could you even remember that? ये उस मोमेंट की बात कर रहा है जब फ्रांसिस नगानो के कॉर्नर में एरिक नेप्सेक जो है उसका हेड कोच है, वो बहुत इमोशनल अपील कर रहा था फ्रांसिस से कि दैट आई बिलीव इन यू मदरफकर, आई बिलीव इन यू एंड वी हैव गॉन सो फार, नो वी हैव डन so much to come into this part. Eric Nixip is one of the best coach in MMA. Fifth round, I mean, that was clutch, man. oh, I remember, I remember everything, even the fourth round. I remember, like, he was there talking and said, Dewey, do you have something? And Dewey would say, yes, this. Everything that they were saying, it's the first time that I was able to really understand, like, what my corner was saying all the time. Even during the fight, I was able to listen to the both. फ्रांसिस ये बोल रहा है कि मैं जो है पूरी फाइट के दौरान इवन फोर्थ राउंड में पूरी तरह अवेयर था कि मेरा कॉर्नर क्या कह रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस नगानो इसी मामले के लिए बदनाम है कि इस आदमी के पास टैलेंट बहुत है, पर ये अपने कॉर्नर की बात नहीं सुनता, ये गेम प्लान पे काम नहीं करता। पर इस बार फ्रांसिस का बोलना है कि आई वॉज एबल टू हेयर एवरी वर्ड ऑफ माई कॉर्नर एंड आई वॉज एबल टू डू इट, राइट। यानी कि ये चेंज है फ्रांसिस में। Like, everybody was telling me, because before we go there, everybody has his own law, what he has to keep reminding me. And Usman was there talking about, like, timing, the pressure, the D's, Dewey was there, Eric was there, everybody was talking. So, and all that made me feel like, okay, we are doing this right. And even at the going to the fifth round, they say, okay, this is 2-2 now. To go take the win. I mean, by that time, I wasn't thinking about my knee anymore. Like, I was like, we get this done, Since the third round, I was like, this is a done deal. Like, let's go finish, Obviously. वो फिर से एक बार वही थर्ड राउंड के एंड की बात करता है जहाँ पे वो अपने आप को देखता है सीरियल के अंदर जब वो स्टीपे से फाइट कर रहे हैं, और उसकी बात से मेरे को पूरा भरोसा था कि इट्स अ डन डील एंड लेट्स फिनिश इट। Take position, very good enough by that time. You have had massive wins in your career. I mean, your last one was as big as it gets over Stipe, but when you say that moment when they announced that you had won, when Bruce Buffer said you won, is that the greatest moment of your professional career? You mean this weekend? Yeah. वो बोल रहा है कि वैसे तो तुमने अपने कैरियर में बहुत बड़ी फाइट जीती हैं जिसमें स्टीपे मियोचिक का भी वो नाम लेता है, पर क्या है तुम्हारे कैरियर की सबसे बेहतरीन विन थी? Yes, with everything going on, yeah, because this wasn't just a fight. This was. बोला कि विद एवरीथिंग गोइंग ऑन, मतलब फाइट के अलावा भी जो सब हो रहा था उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बेहतरीन फाइट थी। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि स्टीपे की फाइट जो है उसकी सबसे टफेस्ट फाइट थी, बट स्टीवी के फाइट के समय स्टीवी के फाइट के अलावा इतना सारा ड्रामा नहीं चल रहा था। I was just not fighting in the octagon. This was like everything that I was fighting for, everything that I stand for. It was way more beyond the fight. It was for my principle. It was for things that I believe into. So that was the reason why I was fighting. I mean, like. हालांकि ये सिर्फ फाइट की बात नहीं थी, ये सिद्धांतों की बात थी। आई वॉज फाइटिंग फॉर समथिंग आई बिलीव इन, राइट। मैं जिस चीज़ों को विश्वास करता हूँ उसके लिए मैं फाइट कर रहा था, इसलिए ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट थी। बोला कि जब वो पहले डील की भी ऑफ़र कर रहे थे तो काफ़ी सारी पैसा जो है मैंने टेबल पे छोड़ के आ गया, क्योंकि मेरे लिए ये बात अब इम्पोर्टेंट नहीं थी, बात सिर्फ इज्जत की थी। आई हैड टू विन दिस फाइट। Is that number
out, made 600 for that fight. वो बोल रहा है कि क्या नंबर एक्यूरेट है जो तुमको बताया है, जो सभी बोल रहे हैं कि $600,000 मिले तुमको इस फाइट के लिए। तो फ्रांसिस बोलेगा हाँ। आपको पता है, खैर पूरी फाइट के ये कॉन्टेस्ट खेला हुआ है कि UFC 270 270 में पूरा का पूरा आपको जो फाइट को दिया गया, फाइटर्स को दिया गया, वो कितना था? टोटल $1.8 मिलियन। चलिए वैसे तो नंबर बाहर नहीं आए, पर कम से कम भी माना जाए तो $500,000 पेपर व्यू बिके होंगे, कम से कम भी माना जाए तो। अगर 500,000 पेपर व्यू बिके होंगे और अगर $60 का भी रेट माना जाए, पुराना रेट माना जाए, तो $30 मिलियन की कमाई। और $30 मिलियन में से एक्चुअल फाइटर को कितना मिला? $1.8 मिलियन। खैर देखते हैं फ्रांसिस क्या बोल रहा है। Yeah, Wow. I did. Can you tell us what they offered you? Dare I ask? I let a वो पूछ रहा है कि कितना पैसा तुमको ऑफर किए थे। lot more on the table. Yeah, how much? Overall, Yeah. I've been letting कितना? a lot of money on the table, Ariel, even since the Stephen fight. By now, I might be down at least 7 million बोला कि अभी तक मेरे को $7 मिलियन का नुकसान हो चुका है इस सब बकचोदी में। that I left on the table. So you said But I'm still happy with my 600 because I still fight for what I. बोला कि मैं अभी भी अपने $600,000 के साथ खुश हूँ क्योंकि वो इज्जत के साथ मिले। And this is the thing, like there is two things. Freedom doesn't work with money. बोला कि फ्रीडम डजंट वर्क विद मनी, मतलब जो आज़ादी है उसकी भी कीमत है। You give up one for one, whether you want a freedom, whether you want money. बोला कि लोग पूछते हैं कि या तो तुमको आज़ादी चाहिए या तो तुमको पैसा चाहिए, मेरे को दोनों चाहिए। You give up one to gain one. right. So does that mean when you say freedom, does that mean you want to be free, that you don't want to fight for the UFC anymore? You can be free and fight for the UFC. How? बोला कि तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि फ्री UFC से तुम अलग होने वाले हो क्योंकि तुमको तो फ्रीडम चाहिए? तो फ्रांसिस कहता है कि नहीं नहीं, आप UFC के साथ भी फ्री हो सकते हो। तो एरियल पूछता है कैसे? I just want to be free. How can you be free and fight for the UFC? वो ये फिर से ही पूछता है कि तो हाउ कैन यू बी फ्री, मतलब कैसे तुम फ्री भी हो सकते हो और UFC के लिए फाइट भी कर सकते हो? In your opinion? I mean, so we are supposedly an independent contractor. वो बोलते हैं कि वी आर सपोजली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये UFC के एम्प्लॉय नहीं है कोई भी, सही। इनके पास इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। अगर आपको कोई भी बोलेगा कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि आप उनके लिए भी काम करेंगे पर किसी और के लिए भी काम करेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो आपको ये लगता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये आदमी इसके लिए इतनी फाइट करेगा और वो आदमी इसको इतने साल तक रखेगा। ये भी नहीं है। आप कहीं और फाइट नहीं कर सकते बट UFC आपको कभी भी निकाल सकता है। यही इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाली बकचोदी कहीं कहीं और जहाँ चलती है, जिस जगह का नाम आपने सुना होगा WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ये सब नाटक वहीं से चालू हुआ है। Independent contractor technically is a free person. Sure. बोला इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टेक्निकली तो फ्री होना चाहिए पर यहाँ नहीं है। But you know how it is, So, right? The contracts are very restrictive, right? You can't go box, you can't do this. and that's the reason why they need some adjustment in that contract. बोला इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट करें। That's what I've been fighting for. So when you say it's not just about the money, you said that, right? It's not just about. Could you say to Yeah. the world, what do you want? What is it about that? तो बोला कि जब तुम बोल रहे हो कि ये बात पैसे की नहीं है तो किस बात की बात है, किस बात पे बात अटकी है? बताओ दुनिया को कि किस बात पे बात अटकी है। Freedom is, but like, what are you looking for? Is there anything specific that you can share? I know you don't have to go through your whole entire life goal here, but what is it that's really bugging you about what they're offering and what maybe they're not offering? The term of the contract, everything that they put into, they hold you like in captivity. बोला कि उनका कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसे ऐसे बनाते हैं कि वो तुमको कैदी बना के रखते हैं। दे होल्ड यू इन कैप्टिविटी। You can do anything, you have no right. बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है। The contract is one-sided. कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह वन साइडेड है। Although you still don't have nothing, you don't even have a health insurance. बोला कि हद तो ये है कि तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं मिलता है उस कॉन्ट्रैक्ट में। While you're doing this, putting your body in the line, on the line, बोला इस गेम में सबसे ज़्यादा नुकसान तो बॉडी को ही होता है और हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। to put on the show, हेलो, risking everything. There's a lot of things, man. We have no insurance, बोला कि हमारे पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। nothing.
अगर फाइट में मर भी जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। like no guarantee, which I understand for independent बोला अगर मैं पूरी तरह इंडिपेंडेंट होता तो मैं ये अंडरस्टैंड करता, बट एक्चुअली मैं सिर्फ नाम में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, बाकी सारी बातें तो वही होती हैं जो यूएफसी कहता है। contractor, but treat me as such. Then, if I am, I mean, whether I'm gonna be बोला कि मैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मुझे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह ट्रीट करो। an employer or an independent contractor, but make it very clear in the contract. It's very mixed up. And so, to be clear, now that you're still champion, your deal is done at the end of the year, regardless of if you're a champion or not, right? Yeah, and that वो बोल रहा है कि तुम्हारी डील जो है वो सिर्फ दिसंबर तक की है ना, कि चैंपियन हो या ना हो। was the case even before this fight. I took this fight just to make it one. बोला कि ऐसा तो ये केस जो है इस फाइट के पहले भी था, अगर मैं चाहता तो ये फाइट नहीं लेता तो भी दिसंबर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता, पर मैं ये फाइट लिया और जीता क्योंकि आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट। And you said you're not fighting anymore. When I get injured, everybody, my team, I'm like, what are you going to gain into this fight? You're not getting money. You're not getting nothing. वो बोल रहा है कि जब ये मैं इंजर्ड हुआ तो मेरी टीम ने भी मुझे यही कहा कि इस फाइट में ना तुम्हें पैसा मिल रहा है, ना इज्जत मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, फिर भी तुम्हें फाइट क्यों कर रहे हो। If you sit down, it's the same situation. बोला कि अगर तुम सिट डाउन में बैठ भी जाते हो तो वैसे भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो फाइट करने का क्या मतलब है। Like, yes, we understand that you want to fight, you want to be active, but be smart. I'm like, yeah, but at some point, be smart is just being dumb, just like. फ्रांसिस इंगानो बोलता है, और आई कैन नॉट, मतलब हिंदी में मैं बोल नहीं सकता कि कभी ही सेड समटाइम्स बीइंग स्मार्ट इज जस्ट बीइंग डम। Being dumb is also being smart. Like I'm एंड बीइंग डम इज समटाइम्स बीइंग स्मार्ट। doing this, for the principle. That's the reason why I मैं ये सब सिद्धांतों के लिए कर रहा था। took this fight, because I saw that what happened after the Stipe fight. I was doing this behind the scene, and nobody really know what was going on. And the UFC went out there. बोले मुझे पता था कि स्टीफे मियोचिक की फाइट के साथ क्या हो रहा था, के बाद क्या हो रहा था। मैं बिहाइंड द सीन मुझे पता था कि क्या हो रहा था, पर दुनिया को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। और फ्रांसिस जो कहना चाह रहा है वो सिंपल सी बात है कि स्टीफे मियोचिक की फाइट के सिर्फ 3 महीने बाद यूएफसी ने इंटरम चैंपियनशिप करवा दी। They're trying to like really damage my brand. वो मेरे ब्रांड को डैमेज करना चाह रहे थे। Like I didn't like that part, and then I think that exactly like that's probably the thing that I hated the most about this, like how they hold or they got the power to like just destroy you as soon as you don't say yes for the acclaim. They just take you down, like, and I I don't know. There's something wrong with me with those kind of things that I can't just take it. Does that go back to maybe when you were a kid? Is there something like I was just about to ask you that? Seems like it's something ingrained in you. It's a very sensitive subject for you. It's a very personal thing. Does that date back to how you were treated as a kid? Is this relating to something else that you went through in your life? I don't know. बोला कि ये क्या तुम्हारे बचपन से रिलेटेड है या फिर कुछ और तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ है उससे रिलेटेड है। I just know that I love freedom, and I'm in America, which is a बोला कि मुझे सिर्फ फ्रीडम चाहिए और मैं जिस देश में हूँ अभी उसको लोग कहते हैं कि अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ फ्रीडम। freedom, so I should have that. Do you still want to fight for the UFC? वो पूछता है कि तुम अभी भी यूएफसी के लिए फाइट करना चाहते हो। Good question. Do the UFC still want me to fight them? बोला कि तुमको यूएफसी से पूछना पड़ेगा कि क्या यूएफसी चाहती है कि मैं उसके लिए फाइट करूं। Do you think they do? तुम्हें क्या लगता है वो चाहते हैं। Oh, you should ask them. बोला तुम्हें उनसे पूछना पड़ेगा। They should be the one answering that question. But what about you? Do you want to fight for them? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके लिए फाइट करना चाहते हो। He's right. Yeah. अगर वो मेरे साथ सारी चीज़ें सही करते हैं तो मैं ज़रूर फाइट करूंगा। Yes. But you are That's willing? all what I've been saying. Are you willing to walk away if necessary? और क्या तुम इस बात के लिए भी तैयार हो कि तुम अगर तुम्हारे साथ चीज़ें सही नहीं की जाती हैं तो तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो यूएफसी से। I'm willing to do
won. यहाँ पे फ्रांसिस नगानो बोलता है और सेंटेंस ऑफ द सेंचुरी है कि आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर व्हाट आई वांट, यानी कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। Listen, as I said, even before this fight, I walked into this fight. I could have lost this fight. मतलब मुझे पता था कि यह फाइट मैं हार सकता हूँ, फिर भी मैं इस फाइट में आया। But I reviewed everything. But in me, I'm like, if this is it, if this is the end, let it be on my way. मतलब मुझे पता था कि ये फाइट मैं हार सकता हूँ और अगर ये एंड होने वाला था तो ये एंड मेरे को अपनी टर्म्स पे चाहिए था। It's gonna be on my way. I'm gonna make the call how he end. You won't end on somebody's room. You will end on my own rules. And if this is the end, man, I'm happy. From where I came from, मतलब कि अगर ये एंड भी होता तो भी मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आया मैं बहुत कुछ ऑलरेडी हासिल कर चुका हूँ। और सही बात है, इसके बाद अगर फ्रांसिस नगानो एक फाइट भी नहीं जीता, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, तो भी फ्रांसिस नगानो अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल कर चुका है कि उसे सफल आदमी कहा ही जाएगा। जो आदमी आज से सिर्फ 10 साल पहले रेत की खदान में काम कर रहा था, आज वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है कि इतना उसकी सक्सेस मिट जाए? आई डोंट थिंक सो। I have done a lot. Some people might not see that, but I have done it, and I'm very happy about that. I'm proud of myself. मतलब इस कुछ लोगों को लग सकता है कि मैंने इतना नहीं किया, बट मैं बहुत खुश हूँ अपने आप में जो कुछ मैंने हासिल किया है। मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो भी लगभग लगभग 22 27 28 मिनट का हो चुका है, तो विल एंड द पार्ट 2 हेयर। विल मीट अगेन विद द पार्ट 3। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है? और अपना ध्यान रखिए।